welcome to all of you in physics class to all of you. And today our new chapter is sources of energy. Sources of energy is the last chapter of the first term. Okay, and so we'll discuss about this chapter. This is very easy chapter, and we will discuss one by one some important terms related with this chapter. Okay, now here is, you look at this whiteboard, and the chapter is sources of energy, and the first topic is a source of energy. Okay, a source of energy is one which can provide adequate amount of energy in a convenient form over a long period of time. It means that the sources of energy are provided, that means provided in adequate amount, this sufficient amount. It means that it provide in sufficient amount and of energy, that is and very easy way, and so and it takes to complete in a long period of time. It will last for a long period of time. These are called source of energy. And now the sources of energy are classified into two parts. First one is non-renewable source, and second one is renewable source. So okay, first is non-renewable source of energy. That means those sources of energy which have accumulated in nature over a very long time and cannot be quickly replaced when exhausted are called non-renewable sources of energy. For example, coal and petrol. Once again, I would like to explain to you that non-renewable source of energy, that means those sources of energy that are not used again and again. In very short, you will tell that those sources of energy which are not it is given details, those sources of energy which have accumulated, collected in nature over a very long period. It takes millions of years ago and cannot be quickly replaced, and that not be quickly replaced when they are exhausted. That means when they are lost. Okay, and these are called non-renewable source of energy. For example, coal and petrol. Okay, and third one is renewable source of energy. It means those sources of energy which are being produced continuously in nature and are inexhaustible are called renewable sources of energy. For example, air and water. Once again, renewable sources of energy, that means those sources of energy which are used again and again. That means here is the example is air and water are used again and again. Okay, and they are for everlasting, for a long period of time. And it means it is also given that which are being produced continuously, not stop, continuously in nature and are inexhaustible, that means not lasting, not everlasting. Okay, and are called renewable sources of energy. For example, air and water. Now, quality of a good source of energy. We will discuss about quality of a good source of energy. Okay, we can classify, we can show that how can we show, how can you say that quality of a good source of energy? A source of energy is good quality, has a good quality, then it is, these are the parameters for that. Okay, it should be cheap and easily available. Okay, first is properties, and second property, it should be easy to store and transport. Okay, easy to store and transport also. And third one, it should be safe to handle and use. And fourth one, it should be pollution free. Okay, and now there is a the topic is fuel. Okay, fuel are the materials which are burnt to produce heat energy are known as fuel. For example, wood, coal, cooking gas are fuel. Once again, those materials which are burnt to produce heat energy and are called known as fuel. Okay, wood, coal, cooking gas are example of fuel. Okay, and now we will discuss once again. एक बार मैं फिर बता दूं आप सबको क्लास 10 के सभी स्टूडेंट्स को वेलकम है, स्वागत है आप सभी का। और आज आप सबका सुप्रभात है, और आप सबको एक सोर्सेस ऑफ एनर्जी के स्रोत, ऊर्जा के स्रोत, ये टॉपिक है हमारा। ये फर्स्ट टर्म का लास्ट टॉपिक है। ये फर्स्ट टर्म के एग्जाम में ये अंतिम पार्ट है, लेसन है फिजिक्स का, तो वो हम देखें इसमें।
तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी में क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लेकर मैं आया हूँ और उसे अच्छी तरह समझेंगे। बहुत इजी चैप्टर है ये, केवल याद करने की आवश्यकता आपको पड़ेगी और अच्छी तरह से आप समझेंगे। देखिए क्या है, ये सभी लोग, आप लोग सारे लोग ये लुक एट द, ये यहाँ देखिए, वॉच कीजिएगा अच्छी तरह टीवी की, खास करके ये आपका ये जो व्हाइट बोर्ड है उससे आप देखिए सारे लोग। देखिए दिया, ए सोर्स ऑफ एनर्जी इज वन, एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी ऐसा स्रोत है, कैन प्रोवाइड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ, जो पर्याप्त होता है, पर्याप्त मात्रा में हमें मिलता है, कहीं से प्राप्त होता है, एंड एनर्जी, और उससे क्या होता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी, काफ़ी मात्रा में ऊर्जा के स्रोत प्राप्त होते हैं, और कन्वीनियंट, जो आसानी से मिल जाता है, ओवर ए लॉन्ग, और ये बहुत लंबे समय तक टिकता है। ऐसे ऐसे हम सोर्स को बोलते हैं सोर्सेस ऑफ एनर्जी, इन्हें हम एनर्जी के स्रोत या ऊर्जा के स्रोत कहे जाते हैं, हम कहते हैं इन्हें। दूसरा, ऊर्जा के स्रोत को दो भागों में बांटा गया, एक है आपका अनवीकरणीय, जिसको नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के, दूसरा है नवीकरणीय, मतलब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो देखिए हमारा नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, दो सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच हैव एक्यूमुलेटेड इन नेचर, कह रहा है क्या इसमें कि ऐसे ऊर्जा के स्रोत जो प्रकृति में कलेक्ट होकर प्राप्त होते, संचित होते हैं, और लॉन्ग, वेरी लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, कह सकते हैं इसे मिलियंस ऑफ ईयर्स, लाखों वर्ष लगते हैं इसके बनने में, एंड कैन नॉट बी क्विकली रिप्लेस्ड, और ये बिल्कुल आसानी से रिप्लेस नहीं होते हैं, ख़त्म नहीं होते हैं। व्हेन एग्जॉस्ट, जब ये खत्म हो जाता है तो कह रहा है क्या, फिर तुरंत इसको रिप्लेस, फिर तुरंत इसे नहीं ला सकते हम, आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। एग्जाम्पल, कोल और पेट्रोल, ये दो चीज़ें, कोल पेट्रोल, ये दोनों नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, इससे फॉसिल फ्यूल भी हम कहते हैं, जिसको जीवाश्म ईंधन के रूप में हिंदी में हम बोलते हैं। तो देखिए इससे फिर हम लोग पढ़ेंगे आगे इसके बारे में। ये दूसरा, तीसरा हमारा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसे बोलते हैं ये नवीकरणीय सोर्स ऑफ एनर्जी। आप शॉर्ट में जान सकते हैं, इसमें दिया हुआ है, दोज सोर्स ऑफ एनर्जी विच आर बीइंग प्रोड्यूस्ड कंटिन्यूअसली, एक ऐसे ऊर्जा के स्रोत हैं जो लगातार, ये नेचर प्रकृति में बनते रहता है, प्रोडक्शन होते रहता है, उत्पादन होते रहता है इसका, एंड आर इन एग्जॉस्टिबल, ये कभी एवरलास्टिंग नहीं करता है, मतलब बिल्कुल समाप्त नहीं होता है ये, आर कॉल्ड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए उदाहरण के लिए एयर, हवा और पानी, ये कभी खत्म नहीं होता है, बिल्कुल जब तक धरती रहेगी तब तक ये टिके, तब तक ये दोनों चीज़ मिलेंगे हम लोगों को। तो देखिए अब तीसरा है टॉपिक, हम चौथा टॉपिक है क्वालिटी ऑफ ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। गुड सोर्स ऑफ एनर्जी एक ऊर्जा के अच्छे सोर्स हैं, स्रोत हैं, इसके कुछ पैरामीटर दिए गए हैं, कैसे आप जानेंगे कि ऊर्जा के अच्छे स्रोत हैं ये, तो इसके लिए कुछ पैरामीटर दिए गए हैं, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा जो एनर्जी का स्रोत है वो सबसे अच्छा है। ठीक है, देखिए पहला उसकी विशेषता क्या होनी चाहिए, इट शुड बी चीप, ये सस्ता होना चाहिए, चीप कहते हैं सस्ता, एंड ईजिली अवेलेबल, आसानी से प्राप्त हो जाए। दूसरा है इट शुड बी इजी टू स्टोर, आसानी से कहीं रखा जा सके, इसको कलेक्ट किया सके कहीं भी, एंड ट्रांसपोर्ट, कहीं एक जगह दूसरी जगह ले जाने में भी सुविधा हो, इसको बोलते हैं हम ट्रांसपोर्टिंग। तीसरा, इट शुड बी सेफ टू हैंडल एंड यूज, यह इसे काम करने में, प्रयोग में लाने में सेफ, सुरक्षित हो, किसी तरह की घटना नहीं घटे और प्रयोग करते हैं तो ये आगे है। फिर हमारा लास्ट है, इट शुड बी पॉल्यूशन फ्री, ये प्रदूषण से मुक्त होना चाहिए, प्रदूषण, पॉल्यूशन, एटमॉस्फेयर में जो पॉल्यूशन से तो बहुत बीमारी हो सकती है, इसलिए पॉल्यूशन फ्री कहते हैं इसको, मतलब कि ये हमारा पॉल्यूशन से फ्री रहेगा, तो मतलब कि इसमें ये प्रकृति जो है बिल्कुल साफ क्लीन होगी, इसीलिए बोलते पॉल्यूशन फ्री हम कहते हैं इसे। और फिर देखिए अंतिम टॉपिक हमारा फ्यूल, इसे ईंधन बोलते हैं हम लोग हिंदी में। ठीक है, तो एक ऐसे मटेरियल, ऐसी पदार्थ कहते हैं हम उन्हें, जिन्हें जलाने के बाद हीट एनर्जी प्राप्त होता है, मतलब कि उष्मा वाली एनर्जी प्राप्त होती है, उष्मा रिलीज होती है, और फिर जिसे हम कहते हैं फ्यूल। एग्जाम्पल हमारा वुड, लकड़ी, कोल, कोयला और कुकिंग गैस हमारा ये फ्यूल के रूप में काम आता है, ईंधन। कहना मतलब कि एक फ्यूल एक ऐसा पदार्थ है जिसे जब हम गर्म करते हैं और हीट करते हैं, गर्म करते हैं, खास करके हवा की उपस्थिति में, तो ये हमारा ये खास करके यूज़ होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो जलता है और हीट एनर्जी निकलती है, हीट एनर्जी निकलती है, और फिर वुड, कोल, कुकिंग गैस, ये हमारा एग्जाम्पल हुआ। तो इस तरह से हम देखें, वुड, कोल और ये कुकिंग गैस हमारा एग्जाम्पल हुआ इसका, और इस तरह से ये टॉपिक हमारा समाप्त हुआ, और बहुत इंटरेस्टिंग, इसे 2 बार 3 बार वॉच करेंगे आप सबको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, और फिर ये लिख करके कॉपी में दिखलाइएगा भी मुझे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आप सबको ऑल द बेस्ट, और बेस्ट ऑफ, आगे परीक्षा भी है
आने वाले महीने में, इसलिए बिल्कुल अच्छी तरह से एक दो बार टॉपिक को पढ़िए। पीछे भी जो वीडियोस हमने भेजा है उसको भी अच्छी तरह देखिए, फिर से रिपीट करके देखिए, पढ़िए, तो आपको नॉलेज बढ़ेगा, एडवांस नॉलेज होगा और अच्छी तरह से आप सॉल्व करें। एक बार फिर आप सबको ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।